Hello guys, so today we are going to discuss about a problem based upon the balancing of different masses which are riding in the same plane. तो आपको एक numerical given है in which the question is find the position and the magnitude of the balancing mass if the radii of rotation of the balancing mass is 0.2. So the question mainly is that we have to find the position as well as the magnitude of the balancing mass, whereas what is given to us is that the masses, we have four masses. First one is 200 kg, 300, 240 and 260. So to start with, I just want to tell you guys whatever is given to me in the question. So the terms which are given to me are, first one is m1 is given. What is m1? It is 200 kg. Clear? m2 is also given. What is m2? The value of m2 is 300 kg. The value of m3, third mass, is also given. It is 300 kg. And the value of the fourth mass is also given. What is the fourth mass? That is 260 kg. Okay. इसके अलावा जिनको गिवन है वो क्या है? That is in the third note we can see that radii of rotation आपको गिवन है. Radii of rotation of each of the mass. Clear? तो अगर मैं बात करता हूँ in terms of R1, उसको मैं मीटर्स में निकालता हूँ. So it's going to be 200 जो गिवन है आपको divide by 1000. Okay, that will give us 0.2 meter. Similarly, if we talk about the value of R2, it's going to be what? It is going to be 0.15 meter. Third one is radii of rotation of the third mass. It is 250. It is going to be 0.25 meter divided by 1000. Similarly, for the fourth mass, the radii of rotation is going to be 300 divided by 1000, that is 0.3 meter. Clear? So these are the radii of rotation of respective masses. Next, what is given to us is that the angle are given. So angles are 45, 75 and 135 degree angle between the successive masses. So this must be clear to you that these are the angles between the successive masses. Clear? So only three angles are given to us. Okay, so if you look at it, if I have to draw the diagram of it, clear? So the आपका एंगल आपको सिर्फ तीन गिवन है बट मासेस चार हैं. सो व्हाट वी आर अज्यूमिंग कि जो आपका फर्स्ट मास है वी आर अज्यूमिंग इट इज़ बेसिकली प्लेस्ड एट द हॉरिजॉन्टल ओनली. क्लियर? जिसको हम क्या बोल रहे हैं? m1. क्लियर? सो आई एम सेइंग m1 जो है द एंगल फॉर दैट इज 0. क्लियर? हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है. क्लियर? सेकंड इज फर्स्ट एंगल इज 45. क्लियर? तो m1 और m2 के बीच का जो एंगल है वो कितना बनेगा? That angle is going to be around 45 degrees. So over here I'm going to place my mass m2. Clear? And this angle is going to be 45 degree. Clear? If I talk about the third angle, it is 75. Clear? It means m2 और m3 के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 75 है. बट अगर मैं बात करूं m1 और m3 के बीच के एंगल की तो वो कितना आएगा? दिस एंगल इज व्हाट? This angle is 45 degree. As I told you guys, this angle is what? This is 45 degree. Okay, तो जो m2 और m3 के बीच का एंगल है वो कितना है? 75 है. तो आपका जो m3 है वो कितने एंगल पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू द m1? तो वो आएगा 75 प्लस 45. क्लियर? दैट इज गोइंग टू इक्वल टू 120 डिग्री. तो आपका जो वो एंगल बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बनेगा कहीं पे. That is going to be 120 degree. Clear? So this is my third mass. This is m3. Okay, तो ये वाला जो आपका एंगल है m1 से m3 से लेके m1 के बीच में, ये जो एंगल है ये कितना है? 120 डिग्री. बट अगर मैं बात करूं m2 और m3 के बीच के एंगल की तो वो कितना है? वो है 75 डिग्री ओनली. क्लियर? नाउ द फोर्थ मास दैट इज बेसिकली m4. क्लियर? जो हमको गिवन है उसका जो एंगल है नेक्स्ट वो कितना है? m3 और m4 के बीच का एंगल है 135. और हमको क्या निकालना है? m1 और m4 के बीच का एंगल. तो ये 120 है प्लस 135 तो कितना आ जाएगा वो? इट इज गोइंग टू 255. क्लियर? तो प्रोबेबली वो कहाँ पे आएगा? अप्रोक्सीमेटली अराउंड लेस देन 270. सो वी कैन से कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं पे आपका एंगल आने वाला है ऑफ 255 डिग्री.
and this is going to be above fourth mass, that is going to be M4. क्लियर? तो ये वाला जो आपका एंगल आपको बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो एंगल कितना रहेगा आपका? इट इज़ 120 प्लस 135, दैट इज 255 डिग्री। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो कि M3 और M4 के बीच का एंगल कितना है? 135 है, बट हम निकाल रहे हैं M1 और M4 के बीच का एंगल। तो सारे एंगल्स को आपने ऐड कर देना है, को मिलेगा आपको एंगल 255 डिग्री। क्लियर? इस बिकॉज ऑफ दिस जो आपके पास यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी वो क्या आएगी? FC1 आएगी। यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी FC1 बिकॉज ऑफ द मास M1। यहाँ पे आपके पास FC2 मिलेगा आपको। ओके, सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस, क्लियर, दिस इज गोइंग टू बी FC3 and at this point we are going to have our fourth centrifugal force, that is going to be FC4। क्लियर? तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? बैलेंसिंग मास निकालना है कि वो कहाँ पे आएगा, बट उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना होगा इसका रिजल्टेंट। तो उसके निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? वी आर गोइंग टू अप्लाई द एनालिटिकल मेथड ऑफ इट। उसमें हम क्या निकालते हैं? इनिशियली समेशन हम H निकालेंगे। तो समेशन H क्या आएगा आपके पास? व्हाट इज द फार्मूला? इट इज गोइंग टू बी M1 R1 cos of θ1 plus similarly M2 R2 cos of θ2 plus M3 R3 cos θ3 plus last one is going to be M4 R4 cos of θ4. So that is how we will do it. Okay, this is called horizontal component of all the forces. Similarly, we have to find the value of vertical component. तो सारी वैल्यू सेम रहेंगी M1 R1 as it is, but the cos now will be replaced by what? Sine of θ1. So it is going to be sine θ1. Similarly, this is going to be what? M2 R2 sine of θ2 plus M3 R3 sine of θ3 plus last one is going to be what? M4 R4 cos of θ4. Clear? Cos of θ4. नाउ जिसको आप सॉल्व करोगे वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास सारे मासेस गिवन है, आपके पास R गिवन है। क्लियर? वी हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ θ1 θ2 θ3। क्लियर? अगर हम बात करें θ1 की तो वो क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ1? θ1 इज 0। क्लियर? तो यहाँ से आप देख सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ1? θ1 इज 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ2? θ2 इज व्हाट? 45 degree. What is the value of θ3? θ3 is basically 120 degree. And what is the value of θ4? θ4 is what? It is 255 degree. तो with the reference जो इसका एंगल बन रहा है FC1 वो हमने निकालना है। FC1 हॉरिजॉन्टली ही है तो वो 0 आ गया। 2 M1 M2 के बीच का एंगल। क्लियर? θ3 क्या है? M3 और M1 के बीच का एंगल। θ4 क्या है? M4 और M1 के बीच का एंगल। तो वो हमने एंगल्स निकाल लिए सारे। तो यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ इट। क्लियर? ये पुट करने के बाद इसको हम निकालते हो तो आपके पास जो समेशन ऑफ H है इसकी वैल्यू क्या आएगी? समेशन ऑफ H बेसिकली कम्स आउट टू बी 21.6 kg मीटर। मास इन kg, इट इज इन मीटर्स। अगर आप समेशन V निकालते हो यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, समेशन V कम्स आउट टू बी 8.5, अगेन यूनिट्स आर kg मीटर। क्लियर? तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे से क्या निकाल लेंगे? आपका R निकाल लेंगे। R हमारा क्या रहेगा? रिजल्टेंट ऑफ इट। क्लियर? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ H स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ V जो आपने निकाल रखा है ऑलरेडी उसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। क्लियर? तो अगर इसको आप वैल्यूज पुट करते हो यहाँ पे तो आपके पास R की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 23.2 kg मीटर। क्लियर? बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ समेशन H समेशन V, वो द कंपोनेंट्स आर देयर। तो वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आ गया? 23.2 kg। ये मेरा क्या है? रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट किस चीज़ का है ये इन चार की चार फोर्सेस का रिजल्टेंट है।
क्लियर। और ये कितने एंगल पे है अगर आपने वो निकालना हो तो सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। क्लियर। तो अगर हम यहाँ से tan ऑफ थीटा निकालते हैं, थीटा निकालने के लिए, तो वो क्या आएगा, समेशन ऑफ v ओवर समेशन ऑफ h। क्लियर। सो दिस बेसिकली विल बी इक्वल टू व्हाट, थीटा tan इनवर्स ऑफ समेशन v समेशन h। तो अगर आप यहाँ से थीटा निकालते हो तो थीटा का आपका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 21.48 डिग्री। ओके, इट मीन्स जो आपका रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 23.2 है, और वो कितने एंगल पे लग रहा है, 21.48 पे। तो अगर इसको आप चेक करते हो यहाँ पे 21.48 कहाँ पे आएगा हमारा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं पे आएगा 45 इसके बीच में। क्लियर। इट मीन्स जो आपका रिजल्टेंट है वो यहाँ कहीं पे आपको मिलने वाला है, इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट। क्लियर। तो इस रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इन चारों फोर्सेस का है इसके ऑपोजिट में यहाँ पे हमने एक मास अटैच करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग मास बोलेंगे। क्लियर। और वो बैलेंसिंग मास जो है वो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आएगा और वो उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा जितनी कि यहाँ पे रिजल्टेंट मिल रहा है आपको। तो हम चाहते क्या है कि जो हमारा यहाँ पे मास लगाया हमने वो इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करे कि वो रिजल्टेंट की इक्वल हो, तभी जो हमारा वो रिजल्टेंट है वो उसको बैलेंस कर पाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा एफ बी है, बैलेंसिंग मास की जो बैलेंसिंग फोर्स है वो आर की इक्वल आए, और एफ बी निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, ये इसका मास है और आर बी क्या आएगा, इसका रेडियस ऑफ रोटेशन। क्लियर। सो इसकी इक्वल आ जाएगी, अगर इसको आप पुट करते हो फार्मूला क्या बनेगा एफ बी का, इट इज गोइंग टू बी एम बी मल्टीप्लाई बाय आर बी। क्लियर। जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आर के इक्वल आएगा और वही आपका एफ बी भी होगा। क्लियर। तो अगर इसके आप वैल्यूज पुट करते हो यहाँ से, तो एम बी तो हमने निकालना ही है कि कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय क्या है साथ में आर बी। आर बी क्या है यहाँ पे गिवन है, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बैलेंसिंग मास इज 0.2 मीटर, सो मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो अगर मैंने यहाँ से एम बी निकालना हो तो मेरा एम बी कितना आ जाएगा, एम बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, it is going to be equal to FB, which is equals to R. What is the value of R? It is 23.2. So 23.2 divided by 2, clear, is going to give me the value of the mass. It is going to be 116 kg. ओके, तो ये मेरा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया किसका, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ माई बैलेंसिंग मास, ये जो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एम बी का। अब वो पूछ रहा है उसका पोजीशन क्या है, तो पोजीशन के लिए आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो मेजर करना है। ये जो पूरा एंगल है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ इट। क्लियर। तो अगर उसको आपने सिंपल वर्ड्स में निकालना हो तो वो कितना निकल जाएगा। क्लियर। तो एंगल अगर आपने इसका निकालना हो, थीटा बी जिसको आप बोल सकते हो, थीटा बी, तो वो किसकी इक्वल आएगा, इट इज गोइंग टू बी सिंपल, इट इज 180। ये पूरी का पूरा कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ऊपर, दिस इज 180 प्लस ये एंगल जो आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, कितना था वो 21.48। सो 180 प्लस 21.48 गिव्स यू द वैल्यू ऑफ थीटा बी। कितना आएगा ये, अप्रॉक्सीमेटली इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 201 डिग्री। क्लियर। तो ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग मास आ गया मैग्नीट्यूड में, और ये क्या आ गया, बैलेंसिंग मास की पोजीशन आ गई कि वो कहाँ पे लग रहा है। क्लियर। दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एनालिटिकली। इसी सेम क्वेश्चन को हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, विच वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो इफ यू guys like it, please like the video, comment if you guys have any query, and please subscribe my channel, that is Mechanoreceptor. Thank you very much.